Suryakumar Yadav, it's a pleasure to have you with us. Thank you, sir. You have done an amazing job. Normally, I do an introduction of all my guests, but I don't think I need any introduction of Correct, sir. Suryakumar Yadav. There is not a single person in India who does not know you, what you have achieved. It's just an incredible achievement, and it's a pleasure to have you on PTI's podcast. Thank you, sir. Welcome. Thank you. It's my pleasure. So, tell me, it's been week has gone by, and you're the first team to achieve back-to-back T20 World Cups. 3 times World Cup winner. You have led that team. What does it feel like? I mean, I think it's an amazing feeling altogether. That too, winning back-to-back at home soil. When we got to know that we are going to play this World Cup in India, we started our preparations like about 17 or 18 months back. And boys were excited. I had to tell them what is a World Cup, what is a World Cup victory. They won't realize it now when they are 24, 25, 27, but they'll realize it at the end of their careers when they leave this sport, that how many World Cups they have won. So I feel that was very important to tell everyone. And then slowly as we played bilateral tournaments, we understood what brand of cricket we want to play going forward in an ICC event. Because I feel we used to play a different brand of cricket in bilateral and then ICC completely different. Right. But then we wanted to play the same way. And I told everyone, let's enjoy, let's get excited for this tournament. so would you say that in some ways you had started preparing the team a year in advance? Mentally, they were being prepared to be ready for this tournament. Yeah, for I ICC. feel it's very important because if you're going to play such a big tournament, that too in India, I think everyone has to be prepared. You can't prepare like, for example, the exams are nearby, you take holiday for a month and then you prepare for that. I think that becomes too late. But then I think 17, 18 months was a very long time to work on everything what we wanted to do coming into the World Cup. Right. And we started our preparations post that. We had a lot of challenges playing good teams in bilaterals. Yeah. And then we decided how we wanted to play going forward. We'll try and stick to the same way, same routines going into the World Cup. Yeah. I'll take you to the final. Do you remember any moment in that match when you thought कि ये match तो अपना कप अपना है? In press box, we were sitting in the press box and I had written a story saying that the power play, the first 6 overs was when the match was decided. Did you also think that way? Not really. I don't want to lie about it. We were very nervous. Yes, we were playing a final in India. We had a lot of nerves, but yeah, at the same time, we didn't want to think that we are already a step ahead or we've already won a game, because this is a fantastic leveler. You don't want to be ahead of the game or think about what has already happened. We wanted to stay in present, keep our feet where it is already, and then take it how it comes, because we've seen a lot of times teams have taken a good start in power play and then the opposition have come back into the game nicely. So we played a lot of games like that throughout that 17-18 months and also in previous World Cups. So we wanted to be very relaxed, not think about what is lying ahead and play the game, and we'll definitely see what happens. But at the end of our first innings, when we got about 250-255 runs, we thought we had an edge. Because You're being modest now. no. When you get 250 in the final, because we had got the same amount of runs in the semi-finals and we won by 7 runs. Correct. So we had seen what had happened before. So we wanted to be thinking that 256, still we need to go out, defend, play good cricket. But 92 in the first 6 overs, Sanju and Abhishek, that must have just completely invigorated the team. I mean, it spread a lot of positivity, and also it calmed everyone in the dugout, because we know how Abhishek Sharma played throughout the year in 2025. Yeah. We always knew that what talent he was, what he could bring to the table. Sanju Samson, he was doing what he's doing at the best we saw in the last 2 games. But Abhishek, it was due, and he was telling me always, Paji, don't worry, मैं आपको World Cup जिता के दूंगा, ऐसा knock मैं खेलूंगा कि आप भी याद रखोगे. So he was having a lot of positivity around. All the players were with him. His family was around. So we knew that it was around the corner and no better place to do it in the final. Was there any decision that you took during the tournament which changed the course of your campaign, India's campaign? I feel there were a lot of small decisions which we took throughout from the first game. But then after Sanju Samson got included in the side, I think the tide completely changed.
And it was a little bit of a tactical decision as well, because three left-handers were batting at the top. So it was getting very easier for the opposition to bowl their off spinners, sometimes part-timers as well. So we didn't want them to have that edge going into the tournament. I think it was perfect and timely inclusion of Sanju, and then the way he played. I think it was due for him as well. He was working really hard behind the scenes. No one knew what he was going through. But then the way he played throughout the campaign, became the player of the tournament. I think it was amazing. He's a great talent. Great talent, and most importantly, he's a great human being. Correct. If you're a great human being, you're a good man. As I always say, everywhere good things happen to good people. I think the best thing happened to him when he started playing this World Cup. I noticed that when the player of match was given to him, and he said that Bumrah deserves it more than he does. Absolutely. See, that's what I said. Good things happen to good people. He's a very good human being. He saw behind the stumps how Bumrah bowled that 4 overs, how he could pull that game for us. Yeah. So, big congratulations to him, obviously, for player of the tournament, and also the way he said it in the post match after he got man of the match. No, and congratulations to you also for leading the team that way. It is incredible. India has not seen this kind of team spirit and the entire team coming together for a very long time. See, it was not that difficult. I think with Gauti bhai coming in, he was very clear that it's a team sport. It has to be a collective effort going forward. If you want to win the World Cup, you have to forget what you want to do, and you have to understand what this team wants. So everyone has different talents they bring to the table. So we wanted that to come on table all together, and then make that fist, and then move forward in this tournament. I think Gautam Gambhir's statement was a bit loaded when he said that individual contributions don't matter as much as team. I think he was referring to some of the senior players of the past who. I mean, that I don't know, because see, there are a lot of tournaments which we've played. Yeah. Personal milestones will always be congratulated. Yes, definitely. But then what you achieve as a team, Right. I think that always remains close to your heart. You always remember. Yeah. Like, for example, he's played 2007 World Cup, 2011 campaign. Yeah. Both the campaigns he was unbelievable as a player, as a team also. But then he realized over the years, I think that if you keep your personal milestones away from team's goal, I think you will achieve even more. Sure. And if you see in the last 3 years, when we started the campaign in 2024, we won the World Cup after I think 17 years, and T20 World Cup, and the World Cup after 13 years. So we played a different brand of cricket. We wanted everyone to contribute. If you see, small contributions came from everyone. Yeah. Same thing happened in 2025 Champions Trophy, and same 2026. If you see, till the semi-finals or the finals, there were no batters in top 3 highest run getters. You won't see any bowler being there in top 3 highest wicket takers. Everything happened when final happened, Right. with all the players coming in. So everyone contributed. So it was contribution from everyone for us to win that campaign. Sure. Let's compare 2024 with this year's tournament, Barbados. I think that match will be remembered for your catch. Not really. I've said it so many times. Yes, it was a moment, but that moment came when all the 3-4 bowlers, like for example Hardik, Bumrah, and Arshdeep, they worked really hard when they needed 30 of 30. 30 or 30, yeah, yes. and they gave around, I think, 14 runs in that 24 balls. Yeah. If I'm not wrong, and then they needed 16 of 6. 16 of 6 last year. And then Miller was on strike, and that is the moment when I got an opportunity. Otherwise, on any given day, 30 ball 30 is an easy cakewalk in a T20 game where you have 6-7 wickets in hand. But then all those efforts from all those 3-4 bowlers, it brought to that moment, and then with God's grace, I was there at that fielding position and I could do something क्या special चल for रहा my था माइंड में country. उस टाइम पे? आपने बताया इसके बारे में, फिर से बताइए. अभी देखिए, इतना तो टाइम नहीं रहता है उस टाइम पे. मुश्किल से 5 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ. बट देन जैसे ही बॉल हवा में गई, मुझे तो पहले ऐसा लगा कि गया, क्योंकि हवा भी उस तरफ चल रही थी. बट देन आई हैड दैट मोमेंट कि मुझे ऐसा लगा कि इधर एक चांस है कि मैं बॉल उठा के अंदर फेंक सकता हूँ, तो 4 रन मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 रन हो सकता है. तो भी 5 बॉल में 12 रन होगा. करेक्ट. तो आई कुड डू दैट. फिर जब मेरे हाथ में बॉल आई, उसके बाद तो सब मुझे ऑटो पायलट पे ही लगा, क्योंकि हम वैसी फील्डिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और जब भी सेशंस होते हैं तो हमने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैचेस वैसे लिए हुए हैं ऑलरेडी. तो उसके लिए हम ऑलरेडी इक्विप्ड हैं. तो वो टाइम पे वो मोमेंट आया,
तो आई वाज फीलिंग वेरी स्पेशल एट दैट टाइम. 161 पे थे वो लोग और 177 चेज कर रहे थे. करेक्ट. व्हाट अ कैच. तो आप कंपेयर करो, उस टाइम आप कैप्टन नहीं थे, इस टाइम आप कैप्टन है, तो दोनों का जो इमोशंस जो था, हाउ आर दे डिफरेंट इन बारबाडोस एंड इन अहमदाबाद? आई थिंक इमोशंस तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे. वहां भी हम इंडिया के लिए खेल रहे थे, हमको वर्ल्ड कप जीतना था. 26 में भी वही गोल था कि इंडिया में, बट हम 26 का इमोशन थोड़ा ज्यादा इसीलिए था क्योंकि हम इंडिया में खेल रहे थे. Correct. और इंडिया में हमको वर्ल्ड कप जीतना था और वही स्टेडियम में जाके जीतना था अहमदाबाद में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. बट देन वही इमोशंस थे. बाकी तो वी वर अवे फ्रॉम होम इन 2024, बट यहाँ पे वी वर एट होम. सो ये दोनों में बस उतना ही इमोशन का फर्क था. बाकी आई थिंक एवरीथिंग वाज द सेम. What about the difference in quality? 2024 में the teams were not, I mean, there was not a big difference between the quality and talent of the different teams. यहाँ पर हमें लगता है कि इंडिया की टीम was far ahead of virtually any other team in the tournament. Would you agree with that? देखिए, ऐसा तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज 2024 में वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. और वो टाइम पे एक्सपीरियंस भी था और अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी थे. बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स तो अभी भी है, बट देन दैट टाइम एक्सपीरियंस बहुत था हमारे टीम में एंड एवरीवन वाज परफेक्टली डिफाइंड फॉर द रोल. इस साल ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक्सपीरियंस कम था लेकिन जोश ज्यादा था. सारे एकदम 25 to 27 की एज के लड़के हैं. उनको वो समझाना कि वर्ल्ड कप इंडिया में जीतना कैसा फील होता है जब लोग आपके लिए इतना आवाज लगाएंगे स्टेडियम में आके, 50-50 हजार लोग, लाख लोग, तो वो कैसी फीलिंग होगी, वो थोड़ा उनको बताना जरूरी था. बाकी तो मेरे हिसाब से टीम्स अगर स्किल वाइज देखो तो 19-20 का ही फर्क है T20 फॉर्मेट में. बट आई फील इसमें जोश ज्यादा था. वो एक्सपीरियंस वाला जोश था. इधर एकदम खून गर्म था लड़कों का. I think you are being very modest. अरे नहीं सर. नहीं तो मैं आई विल पुश यू अ लिटिल बिट. Okay. मुझे लगता है कि ये वाली जो टीम जो है, दिस इज द बेस्ट T20 टीम इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. आप यू मे नॉट एग्री, यू विल से समथिंग वेरी डिप्लोमेटिक एंड गेट अवे विद इट, बट मेरा कहना ये है, आपको पता नहीं क्या जो कहना आप कह लीजिए. नहीं देखिए सर, 2026 का अगर आप T20 टीम की बात करो तो वो पूरे 18-20 महीने की मेहनत है. बिल्कुल वहां हम पूरे 18 महीने में कैसे खेले, हमने पूरा वर्ल्ड कप ऐसे ही खेला. और अगर आप टैलेंट की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है ये आप टैलेंट रेगुलर आप ढूंढ सकते हो. आईपीएल क्रिकेट होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट होता है. आप देख लो कितने सारे प्लेयर्स एवरी ईयर आते रहते हैं. तो आप कितनी भी टीम बना सकते हो T20 की. तो जब मैं T20 की बात कर रहा हूँ तो आई फील टैलेंट तो अनलिमिटेड है. इतने लोग अगर आप हमारी टीम को छोड़ के भी अगर 2-3 प्लेइंग 11 बना सकते हो, इतना हमारा बेस स्ट्रांग है इंडियन टीम का. तो ये मॉडेस्ट और डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं है, बट अब है ही इतना स्ट्रांग, तो अब इसमें सच बोलने में क्या शर्माना. चलो ठीक है. I will take you back to your initial days. You grew up in Mumbai in Chembur. Correct. And you used to play for Parsi Gymkhana. Yeah. I still play for I still play. You still play. उस टाइम भी कहते थे लोग कि जो सूर्या में जो टैलेंट है और जो कमिटमेंट है वो बहुत ही रेयरली दिखता है. तो would you say that even then you were so confident of yourself that you never lacked self-belief? No, I was always confident and I always had self-belief because I used to enjoy this sport a lot. मैं passionately खेलता था. I used to leave from home with a wide smile. Irrespective मैंने ग्राउंड पे क्या अचीव किया, मैंने रन बनाया या नहीं बनाया है, I used to enjoy being around everyone, play that sport and with the same smile I used to go back home. तो सेल्फ बिलीफ हमेशा से थी एंड आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि या समडे देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कुड अचीव समथिंग. राइट. एंड यू यूज्ड टू लिव इन अनुशक्ति भवन. करेक्ट. अनुशक्ति नगर व्हिच इज फॉर बार्क. या बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. करेक्ट. और आपके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे बार्क में. हाँ. आपको कभी अनुशक्ति में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था? उन्होंने बहुत कोशिश की, फैमिली ने पहले पढ़ाने की. उन्होंने देख लिया कि थोड़े टाइम में उनको आइडिया लग गया कि ये लड़का हाथ में नहीं है, पढ़ाई में तो इसका इंटरेस्ट नहीं है. बट लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा से था स्पोर्ट्स में, क्योंकि उनको दिख रहा था कि आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है खेलना. तो उन्होंने बोला ठीक है खेल लो, अगर बाद में अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर हम तो है ही संभालने के. अच्छा, एक और फन फैक्ट ये है कि आपके नेबर जो थे वो श्रेया घोषाल, जो इंडिया की सबसे बहुत ही वही कॉलोनी में रहती थी, उनके छोटे भाई सौम्यदीप घोषाल, वो आपके साथ क्रिकेट खेलते थे. वो मेरे क्रिकेट नहीं, वो मेरे स्कूल में पढ़ता था एक्चुअली साथ में. अच्छा. हम लोग साथ में स्कूलमेट्स थे. हाँ. सो वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इन स्कूल. अच्छा. तो आई विल जस्ट टेल अवर व्यूअर्स सम अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स अबाउट यू. अरे बाप रे. and about India's team actually. India's played 52 games since you took over in 2024.
ठीक है, वो 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में आपने ये टुक ओवर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, करेक्ट। एंड 52 गेम्स में से इंडिया हैज वन 42 गेम्स, वाओ। 42 games. You have lost only 8 and 2 without any result. So that is 80% win percentage rate in a very fickle format. How do you even get to achieve that? It can't be pure fluke. मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने स्कूल में और कॉलेज में अचीव करने को ट्राई किया था पढ़ाई करके, परसेंटेज वो मुझे आज यहाँ पे क्रिकेट में मिल रहा है। वहां पे तो कभी मैं पार ही नहीं हो पाया 50-60 से, बट डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये सुन के। हालांकि मैं इतना स्टैट्स में ध्यान नहीं देता हूँ, बट किसी को हारना तो पसंद ही नहीं है कोई भी गेम। आई ऑल्सो लव विनिंग ऑल द गेम्स। तो वैसे ही हमने कोशिश की खेलने की। अगर आप एक ढंग से खेलते हो, अगर आप सब लोग जो भी एक ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, अगर आप सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, तभी ऐसा परसेंटेज आ सकता है। ठीक है। एक फैंस हैव नोटिस वन थिंग, जब आप फील्ड पे होते हैं तो यू नेवर लूज योर कूल। आपका स्माइल हमेशा चेहरे पे रहता है। अगर कैच ड्रॉप हो गया, रन आउट चांस मिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो द मोस्ट सिवियर एक्सप्रेशन ऑन योर फेस इज हाँ, ये वाला होता है बस। करेक्ट। हाउ इज दैट? नहीं, क्योंकि सर मैं भी वो सिचुएशन से जा चुका हूँ। मैं भी एज अ प्लेयर मैंने भी इंडिया के लिए खेला हुआ है पहले, अंडर रोहित भाई। तो मैंने देखा है कि उनका भी रिएक्शन हमेशा ऐसा ही होता था। वो कभी गुस्सा नहीं होते थे, क्योंकि वो भी अपने टाइम में अपने उस फेज से गुजर चुके हैं। क्योंकि जानबूझ के तो कोई कैच छोड़ना नहीं चाहता है, या कोई जानबूझ के खराब बॉल डालना नहीं चाहता है। सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा बॉल गिरे, अच्छा कैच पकड़ू और इंडिया जीते। तो उसमें अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वी गेट अपॉर्चुनिटीज अगेन टू करेक्ट आवरसेल्व्स। तो टीम मेंबर में डर इंस्टिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अब अगर डर रहेगा तो फिर आप कैसे बेस्ट निकालोगे उनसे? इससे बेटर ये है कि आप उनको बताओ कि आप प्रैक्टिस में कैसे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो, तो ताकि आप जब गेम में जाओ तो उतना प्रेशर कम रहता है। मतलब रहता है, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डर से ज्यादा अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दो सबको पूरे ड्रेसिंग रूम में, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको म्यूजिक पसंद है? थोड़ा थोड़ा। जी। एक जैज म्यूजिक होता है, वेस्टर्न म्यूजिक है जैज म्यूजिक। जी। इट इज ऑल इम्प्रोवाइज्ड। आई मीन द बेसिक स्ट्रक्चर इज देयर, बट द प्लेयर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है वो जैसे जैसे जाते रहता है वो ऐसे इम्प्रोवाइज करते रहता है। योर बैटिंग इज लाइक जैज म्यूजिक। आप एकदम से इम्प्रोवाइज करते हो। तो डू यू प्ले इंस्टिंक्टिवली और डू यू बिफोर द बॉल इज बोल्ड, व्हेन यू सी द हैंड, जब वो आर्म ऊपर होता है, तब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये शॉट खेलूंगा, कि वो एकदम लास्ट मिनट लास्ट सेकंड पे इम्प्रोवाइज होता है? आई थिंक मोस्टली तो ये रिएक्टिव स्पोर्ट है, जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हो। आप बैटिंग करते हो तो आपको पता है कि बॉलर्स क्या डालने वाले, उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो। बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है 70 to 75% रिएक्शन का गेम है। बाकी 25% आपकी इंस्टिंक्ट जो बोलती है कि आपको क्या करना है ग्राउंड पे जाके व्हेन यू आर बैटिंग, दैट टेक्स ओवर। बट एज सुन एज यू एंटर द ग्राउंड, आप एक बैट्समैन का पूरा एक ऑटो पायलट मोड पे रहता है। एक क्या बोलते हैं, रिदम रहता है। वो रिदम से मैं ट्राई करता हूँ बैटिंग करने के लिए, एंड ऑन अ गिवन डे जो डिमांड होगा सिचुएशन का, आई ट्राई एंड बैट दैट वे। अच्छा, एक और फन फैक्ट है, मैंने सुना है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि आपका जो शॉट जो है, वो जो 360 वाला जो शॉट जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द व्हेन यू आर यंग you practiced in a ground where the offside was very limited. Very small, yeah. Very small. I used to play a lot of rubber ball cricket. Okay. तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां मैं अनुशक्ति नगर में रहता था, और ये हम बारिश में ज्यादा खेलते थे क्योंकि सीमेंट पे रबर बॉल तेज आती है। तो वो डर निकालना था खुद के मन से कि बॉल लगती है इसका। तो एक साइड में बाउंड्री 80 मीटर 90 मीटर की होती थी और दूसरे साइड में 20 मीटर। Okay. तो अगर आप देखोगे तो व्हेन आई केम इन 2014 फॉर केकेआर, तब मैं सिर्फ लेग साइड में ही खेलता था। अच्छा। और कभी कहीं खेलता ही नहीं था। ये बाद में मैंने डेवलप किया है 3-4 साल के बाद, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग मोर कम्पिटिटिव क्रिकेट, तब आया है। अच्छा, तो आपके जो शॉट जो है, मेनी कोचेस विल डिस्क्राइब इट एज अ हाई रिस्क शॉट्स, एंड यू नो सम वुड कॉल इट courageous, some would call it reckless. How would you describe it? Where do you draw the balance between courage and recklessness? Sir, I feel there's a very thin line between being courageous and being reckless. Right. तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो उस लाइन के थोड़ा नीचे ही रहूं, जब courageous तक ही, वो reckless वाले मोड में नहीं जाऊं। बट हाँ, जैसे सिचुएशन होगी, अगर उसमें डिमांड कर रहा है कि मुझे हाई रिस्क लेना है, तो लेना पड़ता है। बट most of the times I try to stick to be more courageous, more fearless, क्योंकि when you're pushed against the wall, things are not going your way, या अच्छा सिचुएशन है, तो उस टाइम पे आपको पॉजिटिव रूट लेना ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपको हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए तो हाई रिस्क लेना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल।
बारबाडोस वापस जाते हैं, 2024 वर्ल्ड कप खत्म हुआ जी। उसके बाद में डिड यू एवर थिंक दैट यू विल गेट अ कॉल सेइंग दैट यू आर गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ इंडिया? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे रोहित भाई कैप्टन थे और वाइस कैप्टन आई थिंक हार्दिक वाज वाइस कैप्टन एट दैट टाइम। तो आप यही सोचते हो कि अगर रोहित भाई ने स्टेप डाउन कर दिया है टूर्नामेंट जीत के, तो इट विल बी समवन एल्स हु विल बी टेकिंग दैट रोल। सो वी वेटेड फॉर अ फ्यू डेज, तो हम सीरीज जाने वाले थे। उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन जय भाई, secretary BCCI at that time, called me 3-4 days before the Sri Lanka series. Yeah, I think we went to Sri Lanka. Correct. He called me and he told me that हम आपको going forward captain बना रहे T20 टीम का. He called you first. Yeah, he called me और फिर उन्होंने बोला कि हम आपको कैप्टन कर रहे हैं, but मुझे पूरा श्योर था कि it was all being planned by रोहित भाई, अजित भाई दैट टाइम, एंड देन गौती भाई तो बाद में लेट आए। इन सब ने, और इवन राहुल द्रविड़ सर कोच थे एट दैट टाइम, उन्होंने जय भाई के साथ सबने आराम से बात किया होगा और फिर देन दे डिसाइडेड दैट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ही शुड लीड इंडिया। बट देन जय भाई कॉल्ड मी आई थिंक 3-4 days before we were leaving for Sri Lanka. Yeah. But throughout your career, Jay Shah has been very supportive. As BCCI secretary, he has been extremely supportive. How and he's backed you consistently, and he continued to back you now. How, as an administrator, how does he deal with players and with the captain? I think he's very straightforward. He talks to all the players the same way they want him to talk to them. Because every character is very different in the team. So you have to treat everyone the different way. You can't be talking to everyone in the same way. So anytime he meets me, he tells me and everyone that whenever we've met or he's met people around me and we are standing in a group, he's always told that I've been following this boy from 2010, 2011, since he made his Ranji Trophy debut. So he's been following me for a very, very long time. And then when I made my debut for India, I had messaged him also because he was a secretary, BCCI secretary that time, that thank you so much for giving me this opportunity. And then from there on, every time he's spoken to me, he's been very, very positive. All the positive chats. That's all the positive chats which he does. I think those are the best with all the players. You know, everyone talks about pressure during World Cup or any other tournament. What does pressure actually feel like? Physically, what does it feel like? Is it silence in your mind space? Is it noise or is it extreme clarity? What is pressure? I think now, if I'm here in this situation after winning the World Cup, then I feel it makes you quiet, it makes you calm right now, because I have been in a lot of pressure situations and I have been very hyper at few times also as to what do I do. But then with experience, it makes you quiet, makes you relaxed, because if you are in pressure situation, if you are very relaxed and calm and composed, then you take a right decision for the team. You're not hassled at that time. There's not too much noise. Yes, there are people in the stadium, but then at the same time, you're very relaxed, you're very quiet, and that time you take a perfect decision. क्योंकि जब हम छोटे थे, प्रेशर होता था, एग्जाम का प्रेशर होता था, और पेट ये भी तो एग्जाम ही है सर। या हमारे पेट में एकदम ऐसे बटरफ्लाइज होते थे। नहीं, बिल्कुल अभी भी होता है 100%। एज अ प्लेयर भी होता था, एज अ लीडर भी होता है, बिल्कुल होता है। बट देन एट दैट टाइम अगर प्रेशर ही नहीं होगा और बटरफ्लाइज नहीं होगी स्टमक में, तो उसको ओवरकम अगर करोगे नहीं आप, तो फिर मजा कैसे आएगा? करेक्ट। क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है, जो लोग बोलते हैं मुझे प्रेशर फील नहीं होता, मैं नर्वस नहीं होता, वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं 100%। क्योंकि आप अगर एग्जाम लिखो या कोई भी चीज आप करने जाओ जहां टेस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में के लिए पढ़ाई किया, आप एग्जाम लिख रहे हो जाके, आप यहाँ मैच खेल रहे हो, तो उसमें प्रेशर होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको ओवरकम करते हो, देन यू बिकम अ बेटर प्लेयर। करेक्ट। मोटेरा के फाइनल के बाद में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आप और गौतम गंभीर दोनों आए थे जी, और आपने कहा था कि आप उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होती। आर्गुमेंट होती होंगी, कुछ ना कुछ तो होती होंगी। एक या दो आर्गुमेंट के बारे में बताइए। नहीं, आर्गुमेंट्स मतलब ऐसे आर्गुमेंट नहीं होता है, डिस्कशन होता है। अच्छा। हमेशा, क्योंकि अभी देखिए वी गो अ लॉन्ग वे। 12 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को। 2014 में व्हेन आई वेंट टू केकेआर, वहां आई हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर 4 years विद केकेआर, एंड ही गेव यू द नेम स्काई। करेक्ट, ही गेव मी द नेम स्काई। उन्होंने मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था 2015-16 के आसपास, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मे बी गोइंग फॉरवर्ड ही कैन लीड
that franchise. तो उन्होंने उस टाइम मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था, and he had a lot of trust in me. Okay. Because we used to share a lot of things on the ground, off the field. He used to ask me कि क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए, and I used to give my opinion. मतलब बिंदास मैं एक बड़े भाई के जैसा उनको सब बोलते रहता था बिना सोचे समझे. Same thing ऐसे चलते रहे, and then all the life came to a full circle. 2025 में मतलब 2024 वर्ल्ड कप के बाद में कैप्टन बना, वो कोच बने. मुझे ऐसा लगता है ये सब लिखा था, इट वाज ऑल डेस्टिन्ड. और जब हमने फर्स्ट टाइम बात की, हमने फर्स्ट टाइम टीम पिक करी थी, तो उसमें अराउंड 15 में से 14 ऐसे नाम थे जो हमारे कॉमन थे. उन्होंने अपना 15 बताया, मैंने अपना 15 बताया. देन ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड, एवरीवन डिस्कस्ड विद द सिलेक्टर्स एंड एवरीवन. तो बट उसमें से 14 नाम हमारे एकदम कॉमन थे. अगर जब 14 नाम आपके कॉमन हो रहे तो आपका कुछ थिंकिंग सेम ही है. वी बोथ आर ऑन द सेम पेज. ही न्यू हाउ आई एम, आई न्यू हाउ ही इज, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम मी, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. तो वो एकदम क्लियर था. जब ये क्लियर होता है, आप दोनों का सब गोल क्लियर होता है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट वर्ड ही नहीं आता है, फिर वो डिस्कशन बन जाता है. Has your relationship evolved over these years? Because when you started with him, there is a big power differential. He is like a superstar. You have just started, and now you are almost his equal or his equal. So how has the relationship evolved? The relationship has still been the same, like a younger brother and an elder brother. अच्छा. क्योंकि अभी भी मैं उनको गौती भाई ही बुलाता हूँ. ऐसे ही बात करते हैं हम लोग. पहले से जैसे बात करते थे अभी भी वैसे ही बात करते थे. So nothing has changed. Yes, he's achieved everything in his life, but जो मैंने और उन्होंने साथ में अचीव करना था, what we decided, I think that was very very special. तो आप क्या बात करते हैं जब क्रिकेट के बारे में बात नहीं हो रही होती? किसके बारे में बात करते हैं? नहीं, हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ टीम डिनर्स. जैसे अभी लास्ट 18 मंथ्स में वी डिड अ लॉट ऑफ टीम डिनर्स, टीम एक्टिविटीज, वी टीम वेंट फॉर मूवीज. अगर प्रैक्टिस में भी कभी गए तो जब भी ऑप्शनल भी होता था तो एवरीवन यूज्ड टू टर्न अप फॉर प्रैक्टिस. सो दिस इज व्हाट ही एक्चुअली टोल्ड एवरीवन, एंड एवरीवन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. तो हम क्रिकेट के बाद मूवीज का डिस्कशन करते हैं, लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं. पॉलिटिक्स के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते. और ट्राई करते हैं हम उससे दूर रहे बिल्कुल. You are a very light-hearted person from what I know of you. जी. You have very different personality to Gautam Gambhir's personality. कभी उनको थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश करते हैं क्या? कोशिश तो हमने पूरी की पूरे वर्ल्ड कप में कि उनको हंसा सके, बट हमारे गेम्स ही ऐसे चल रहे थे फ्रॉम फर्स्ट टिल वी प्लेड द फाइनल्स दैट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लाफ. बट देन फाइनल में जीतने के बाद व्हेन वी सॉ दैट स्माइल ऑन हिज फेस, आई थिंक एवरीवन वाज वेरी वेरी हैप्पी. We saw him smiling for the first time, I think. Not really. I mean, he smiles. Yeah. He also has a lot of fun when we are doing all the team activities. He's always there around everyone. Okay. Smiles as well. Okay. But at the same time, वो moment जो फाइनल के बाद था, उधर तो उनका स्माइल देख के और भी अच्छा लगा सबको. Would you say that you are a data-driven person or a gut feel person? Because when you called ईशान किशन before the World Cup, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ये कि आपने कहा वर्ल्ड कप जिताएगा, उसने कहा भरोसा करोगे, तो यू सेड चल किया. तो जो चल किया, जो भरोसा जो था, was it based on gut or data? It was completely on gut and little bit on data as well. क्योंकि it was very very harsh on जितेश शर्मा at that time. क्योंकि वो लास्ट 1-1.5 साल से टीम के साथ था और खेल भी रहा था. ऐसा नहीं कि he was not playing. अगर नहीं खेल रहा होता तो story would have been different. But then I was also very sad when we had to pick Ishan over Jitesh. But then हमको अगर टॉप में थोड़ी फायर पावर लानी थी, हमको अगर ओपनर्स लेफ्ट राइट करने थे, या ऐसा टॉप 2 विकेट कीपर अगर हमको ओपनर ही चाहिए थे, तो समवन हैड टू मिस आउट. तो मैंने उसको सिर्फ फोन करके यही बोला कि छोटू वर्ल्ड कप जिताएगा. तो उसने वहां से सिर्फ बोला बस भरोसा करके देखिए. मैंने बोला चल ठीक है, किया भरोसा. एंड द वे ही प्लेड, ही वाज अमेजिंग. आई मीन द बायलैटरल से जो उसने स्टार्ट किया, आई ऑलवेज न्यू दैट ही वाज ब्रिंगिंग एन एक्स फैक्टर टू द साइड बिकॉज ही हैड नो बैगेज. When he went out of the team 1-1.5 साल पहले, he went back home. I think he must have sat, analyzed कि क्या हुआ है उसके साथ. Went on to play domestic cricket. वो मुझे उसने पूरी जर्नी बताई अपनी कि कहाँ गया खेलने के लिए. इंडिया के हर कोने कोने में जाके प्रैक्टिस मैचेस खेले उसने. उसकी भी स्टोरी बहुत अमेजिंग, अलग स्टोरी है उसकी. तो मैंने बैठ के सुना भी उससे, उसने भी बताया सामने से. एंड देन द वे ही प्लेड द डोमेस्टिक क्रिकेट, IPL फ्रेंचाइज में उसने परफॉर्म किया. I think he deserved that spot completely. Yeah. I want you to just take a step back and take a 30,000-foot view of the Indian cricket. Where do you think this aggression, this confidence is coming from? Like you see any player in India today, he's fearless. वो कहाँ से? How has it suddenly emerged?
आई थिंक देखा जाए तो सर बहुत फिर तो इसमें बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा. 80s में चले जाओ, 90s में चले जाओ, अब इतना पीछे चले जाओ वहां से, क्योंकि जब इतने कैप्टन्स इंडिया को लीड करके गए, आई थिंक सौरभ सर जब उन्होंने कैप्टनसी ली इंडिया की, उसके बाद मैंने देखा और मैंने सुना कि ही हैड मेड अ वंडरफुल टीम एंड द वे ही यूज्ड टू लीड द इंडियन साइड, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. ही मेड एवरीवन प्रॉपर अटैकिंग प्लेयर्स एट दैट टाइम. एंड देन केम माही भाई आए, उसमें माही भाई ने अपना कूल काम कंपोज नेचर से टीम को लीड किया. एंड देन फिर अग्रेशन के साथ आए विराट भाई उस टाइम पे, फुल अग्रेसिव नेचर, जो भी कंट्री में जाना है जीतना है, जो भी डिफिकल्ट काम है वो सब करने हैं. फिटनेस वाइज हो गया, रन्स वाइज हो गया. आई थिंक ही ऑल्सो स्टार्टेड समथिंग डिफरेंट. एंड देन केम रोहित भाई. उनका भी एकदम रिलैक्स नेचर था, एकदम काम, कैसे निकलवा के लेना है वो इम्पोर्टेंट था. तो वो ग्राउंड लेवल पे जाके हर प्लेयर से बात करना, ऑफ द फील्ड हर प्रैक्टिस सेशंस में आना, जो प्लेयर का ऊपर नीचे चल रहा है उससे ज्यादा बात करना, उसको घुमाने लेके जाना. तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है इट हैज ऑल वर्कड फॉर इंडियन क्रिकेट एंड व्हाट वी आर अचीविंग नाउ, ये सब वो पहले से स्टार्ट हुआ है एंड वी आर डूइंग इट. I think in a way you're saying that we are now reaping the benefits of the efforts of our Correct. predecessors. Absolutely And you are correct. standing on the shoulders of those titans Correct. who built it up. Absolutely correct. I mean, not taking anything away from what you have achieved. And you look at every member of this team, it's amazing. Correct. Is there any particular member of this team that you think has impressed you the most? Not because of their performance, but because of the mindset. In a way, their mindset carried something very impressive. Is there anyone like that? I feel, although I don't want to take away any credit from all the youngsters, Yeah. all the 20 to 23-year-olds, all the 25, 26-year-olds, but then the way Jasprit Bumrah, Akshar Patel, Hardik, all these three people supported me and they carried everything throughout the tournament. I think that was commendable. The way they were always there for all the players. They used to come for all the practice sessions, tell them what is needed to win a game, to win a World Cup. What do we need to do? So all these 3-4 players at that time were very important throughout the tournament, sharing their experience, because these are the players who won ICC tournaments. They've been around the circuit for a very long time with the Indian side. So I think these 3 players were always there. You know, one thing about you that everyone is talking about is how you stood by Abhishek and Sanju. Where did this faith come from? Apart from your belief in them, is it also because, like you said earlier, that you also went through this and you put yourself in their shoes and empathize with them? Correct. Because there was a phase in 2025 when you were going through a lean patch. I think you didn't score a single 50 at the time. For around 400 plus days. Yeah. How can I forget that? No, see, I've also seen in my career when I used to play for India in T20s and when I used to not get runs, there was always someone to support me. Yeah. There was always, like for example, when I played under Rohit Bhai, he used to come and tell me, भाई मुझे पता है कि तू कभी भी रन बना सकता है, तो तू ये मत सोचना कि तू आगे जाके नहीं खेलेगा या क्या होगा तेरे साथ. तू बस ये सोचना कि तू टीम को कैसे जिता सकता है, वो छोटा कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर सकता है तू. So I had learnt a lot of these things from him. And then when I went to his shoes and when these players were going through a lean patch, then I had the same thing to tell them. Because मैंने जो सीखा है, and if it has worked for me, Yeah. then it will definitely work for them also. Everyone works hard. Yeah. Yes, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत सब लोग करते हैं, but at the same time to be very very humble and show that humility after achieving things is also very important. Yeah, Abhishek had a wonderful 2025. Yeah. And we knew that कि कोई गारंटी नहीं है कि 2025 में अच्छा किया है तो 26 में भी अच्छा होगा. If it has to happen, it will happen. It's all God's grace. And the way World Cup started for him and the way Sanju also in 2025 losing his position, batting out of order, and then batting anywhere, then losing his spot, all these things happened. It actually disturbs the player. I understand completely. And I had to tell him in Australia that I know that how difficult it is for you to be in a different position which you don't like, but you're still doing it for the team. I think that's commendable. I had to apologize also to him. It's very difficult. But this is what I can do because I also am thinking about from team's point of view. I also want the team to win. So all these things aligned, and then it was written for him that he'll definitely come up good.
whenever it's needed the most. And the way he did in the World Cup, I think it was a big boost for me. I tell it everywhere. All these 14 players, they've made my job easier. Completely doing a different things, good things at right time. And coming back to Abhishek, I think Abhishek, it was due. I used to tell him, try and stay away from social media if you can, because he was still is the world number 1 player. Yeah. But the way he played in 2025, there was a lot of expectations from him. Yeah. So you want the same player to play the same way. But when the things are not going your way, there are a lot of people talking here and there. But at that time, if you create that balance in life, I think that is very important. And he understood close to the Super 8 semi-finals. And in the finals, he did the same way what he is known for. No, I understand backing someone with great talent, and you did that, and Gautam Gambhir did that. It's all very well when it is working out well. Correct. But in case of Varun Chakravarti, for example, he continued his bat form throughout the tournament, didn't recover. Where do you draw the line? How do you balance कि अभी नहीं हो सकता, अभी इसके बस की नहीं है, कभी इसको ड्रॉप करना है? How do you know that ये मौका, ये टाइम आ गया है? नहीं, ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, और जब तक मैं खेलूंगा तब तक ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि मुझे इस प्लेयर को ड्रॉप करना है जिसने मेरे लिए हमेशा काम किया है हर सिचुएशन ये में। कैसे हो सकता है? बहुत डिफिकल्ट है सर, बट वो अब एक ट्रस्ट होता है ना प्लेयर में। अगर आप देखो वरुण का भी, तो जब तक वो सेमीफाइनल तक खेला, वो हाईएस्ट विकेट टेकर था इंडियन टीम के लिए, तो ही वॉज ऑलवेज देयर। अब हमेशा अगर कोई 4-4 विकेट निकाल रहा है, 5-5 विकेट निकाल रहे हैं, और आप उससे एक्सपेक्ट करते रहो कि हर गेम में वैसा ही रहो, कि कभी कभी क्या है, रास्ते में गड्ढे आते हैं, बट देन उसको डॉज करके यू हैव टू फाइंड अ वे। एंड ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, he used to turn for every practice session, कभी मिस नहीं किया उसने, everything was going well, he was sleeping on time, he eating on time, हर चीज वो सही कर रहा था। but there is sometimes ऐसा होता है कि जब वो नहीं लिखा होगा कि नहीं होने वाला है, तो वो नहीं होता है, आप कितना भी ट्राई कर लो। but I always had that faith in him, and not in only him, every player of the side। तो मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया आज तक कि किसी प्लेयर को ड्रॉप करना है। एक बार चूज कर लिया टीम तो है, वो चूज कर लिया, भरोसा दिखा दिया है, तो भरोसा दिखा दिया। अब ये सुपर टीम बना दी है, अगर वो सुपर टीम है, मैंने सोच लिया है, तो फिर वो प्लेयर भी सुपर ही है सारे। तो हाउ डू यू डील विद डिसअपॉइंटमेंट्स? 3 ducks in a row for Abhishek in the start of the tournament, Varun Chakravarti getting hammered right, left and center. आप क्या बोलते हैं उनको जाके कि डोंट लूज हार्ट? सर बोलना तो बहुत इजी है, डोंट लूज हार्ट, लेकिन देयर हैज टू बी समथिंग टू मोटिवेट देम, नो? व्हाट डू यू डू? सी, इट्स वेरी इजी टू स्पीक, एंड इट्स वेरी इजी टू टेल देम कि अरे भाई ठीक है, 3-0 हुआ है, कोई बात नहीं, आगे होगा, सब अच्छा होगा। बट देन अगर आप उसके शूज में जाओ और सोचो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, जब लोग हैं अगल बगल तो सब अच्छा लगता है, क्योंकि अगर फिर कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब वो रूम में अकेला सोएगा या शावर लेगा, उस टाइम पे तो आदमी अकेला ही होता है, बिल्कुल। तब उस टाइम पे तो उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती है, अरे मैं इतना अच्छा कर रहा था, अब 3-0 हो गए। तो उसको मैंने वो 3-0 एग्जाम्पल मेरा खुद का भी दिया। जब मैं ओडीआई क्रिकेट खेला था, तब मैंने भी लाइन से 3-0 बनाए थे, और तीनों मैच में फर्स्ट बॉल पे ही आउट हुआ था मैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने शेयर किया। देन आई वेंट इनटू आईपीएल, जैसा स्टार्ट चाहिए वैसा हुआ नहीं 5 गेम में, बट आई ऑलवेज न्यू। एक मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुमको ये पता होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। लोग अभिषेक शर्मा को किस नाम से जानते हैं, लोग वरुण चक्रवर्ती को किस नाम से जानते हैं, बस वो हमेशा याद रखना। अगर वो आपको हमेशा याद रहेगा, देन यू विल ऑलवेज मूव इन द राइट डायरेक्शन। आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, इवन दो आपके लाइफ में कितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स आए, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बट लेकिन फिर भी आपको ऐसा होगा, नहीं, अगर इतने लोग मेरे में भरोसा दिखा रहे हैं, तो मैं तो खुद में दिखा ही सकता हूँ ना। we are ordinary people, you are not ordinary. अरे सब ऑर्डिनरी है सर, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। All of us, think of sports people as larger than life, supermen kind of people. You're like extremely fit, you're motivated, you excel at what you do. But like we have insecurities, I'm sure sports people also have insecurities. What do you think is the biggest insecurity of an international cricketer? इंटरनेशनल क्रिकेटर मेरे हिसाब से इनसिक्योरिटी अभी तो नहीं है, बट अगर पहले होती तो मुझे कुछ आइडिया नहीं उसका, क्योंकि मैं तो 2021 में आया, तब उसके बाद से मैंने देखी नहीं। बट हाँ, कभी ऐसा लगता होगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, अभी आदमी रोबोट तो है नहीं, सबके दिमाग में आता है कि अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मैं आगे खेलूंगा कि नहीं, मैं आगे पिक होऊंगा कि नहीं।
तो ये मेरे ख्याल से एक इनसिक्योरिटी होती होगी स्पोर्ट्स में, कोई भी टीम स्पोर्ट में, बट इसको छोड़ के आई डोंट थिंक देयर बी एनीथिंग। इनसिक्योरिटी होती है कि शायद मैं ड्रॉप ना हो जाऊं, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी? नहीं, वो एक्चुअली अभी मैटर ही क्लोज हो गया, खत्म हो गया एकदम, क्योंकि अब ऐसा है कि अगर मैं ड्रॉप हो जाऊंगा या मैं नहीं खेलूंगा, उसको छोड़ के अगर आप ये सोचो कि अगर मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करूंगा, टीम जीत जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो हमने एक्चुअली वो टाइड ही चेंज कर दिया अभी इनसिक्योरिटी वाली। मतलब आप किसी को सोचने से तो रोक नहीं सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग होता है, अपना अपना नेचर होता है सबका, बट एट द सेम टाइम वी हैव ट्राइड टू टेल एवरीवन कि अगर आप ये डायरेक्शन में सोचोगे, सो आई थिंक दैट इनसिक्योरिटी विल मूव आउट ऑफ द रूम। सबकी अलग पर्सनालिटी होती है, आपकी पर्सनालिटी में क्या ऐसा ट्रेट है विच हेल्प्स यू बैट इन फ्रंट ऑफ 50,000 पीपल, 90,000 पीपल? बैटिंग नहीं, आई हैव पुट माई सेल्फ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। जब मैं कभी भी प्रैक्टिस सेशंस करता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे ऊपर खुद पे इतना प्रेशर डाल दूं कि मैं ये सोचूं, अब रहते तो नहीं है 50,000 लोग प्रैक्टिस में, बट देन ये सोचूं कि इतने लोग बैठे हैं, आई एम गोइंग इनटू बैट, अगर मैं आज आउट हो गया तो मैं घर चला जाऊंगा। तो ऑल दी स्मॉल थिंग्स विच वी ट्राई एंड डू इन प्रैक्टिस सेशन, वो बहुत हेल्प करता है। करेक्ट। क्योंकि आप जब ग्राउंड पे जाते हो, फिर ग्राउंड पे जाने के बाद आपको वही सब चीजें याद आती है कि ये सब मैंने करी हुई है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में ही वो सब चीज नहीं फॉलो करोगे जो आपको मैच में करना है, तो फिर मैच में जाने के बाद आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे। Cricket has evolved so much over the years. At least in my lifetime, it is T20 is like nothing I had expected. T20 itself is evolving very fast. So what is the next evolution or revolution that you see in T20? जरा क्रिस्टल बॉल में जरा झांक के देख के बताइए। T20 में अभी T20 में तो देखिए जैसा चल रहा है, पहले हम सोचते थे 130, 140 एक नॉर्मल विनिंग स्कोर है। हाँ। फिर जब फॉर्मेट आया था, फिर उसके बाद 160, 170 तक पहुंचे। अब तो ऐसा लग रहा है कि 250 भी कम पड़ जाएगा। विद द वे पीपल आर अपग्रेडिंग देयर स्किल्स, ऐसा लग रहा है 250, 260 भी कम होगा। अभी मेरे ख्याल से मुझे याद है कि इंग्लैंड ने 300 भी बनाया है T20 में। तो जिस हिसाब से इट इज चेंजिंग, आई फील इट्स गोइंग टू बी मोर वाइल्डर दिस फॉर्मेट। मतलब कभी 160 भी बनेंगे, बट ऑन अ गिवन डे यू माइट सी, अभी जैसे इस टूर्नामेंट में हमने सुपर 8 के फर्स्ट गेम के बाद 250 3 बार बना दिया और एक बार 200 चेस भी कर लिया। सो यही है एवोल्यूशन कि 250, 275 अगर किसी ने बनाया तो क्या पता वो चेस भी हो जाए। और इसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट भी बदलेगा। टेस्ट क्रिकेट तो ऑलरेडी बदल चुका है। तीन दिन में रिजल्ट आ जाता है। नहीं, 3 दिन में भी रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप देखो तो रिजल्ट्स लग रहे हैं, 5 दिन 4 दिन तक जा रहे हैं मैचेस सब जगह में, रिजल्ट तो आ ही रहा है। इट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट्स। और अगर आप देखो कभी 5th डे को टी के बाद या लंच के बाद रिजल्ट आता है, सो एवरीवन इज ग्लूड टू दैट टेलीविजन कि यार यस, टेस्ट क्रिकेट भी अभी है, दम है। एनी रिग्रेट्स दैट यू आर नॉट इन द टेस्ट? आपने एक टेस्ट खेला है, एक इनिंग खेला है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बिल्कुल। बट दैट इज नॉट इनफ टू जज एनीबॉडीज कैपेबिलिटी। नहीं, कैपेबिलिटी तो सर देखो, जो मैंने जैसे बोला कि जब जो लिखा होता है आपके लाइफ में आपको वही मिलता है। मैं स्टार्ट किया, मैंने रेड बॉल से ही रणजी ट्रॉफी में खेला हूँ 10 साल 12 साल। आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट इन बॉम्बे, क्योंकि आप बॉम्बे में आप अगर पैदा होते हो तो आप रेड बॉल से ही स्टार्ट करते हो। सो इट्स एवरीथिंग अराउंड रेड बॉल। बट धीरे धीरे करके व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग व्हाइट बॉल क्रिकेट, तो थोड़ा इंक्लिनेशन थोड़ा उस तरफ भी गया। एंड उसके बाद सीखते सीखते अब ऐसे फॉर्मेट में आ गया मैं। वनडे भी मैंने बहुत कोशिश की ट्राई करने की, खेलने की, कि उसमें भी अच्छा खेल सकूं, बट उसमें कुछ हो नहीं पाया। बट देन T20 क्रिकेट में जैसा चल रहा था, तो उसमें अपना हाथ सेट हो गया, ऐसा बोल सकते हो। बिल्कुल। Well, looking back, do you obviously enjoy T20 much more than Test अभी cricket, तो फिलहाल डेफिनेटली यस, क्योंकि I've been playing a lot of T20s in the last 4-5 years. Yeah. Given an opportunity, would you want to play Test? I would love to, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने 2010-11 से लेके 2020 तक खेला हुआ है रेड बॉल क्रिकेट। तो 10 साल तो बहुत टाइम होता है टू प्ले रेड बॉल्स, एंड आई वाज इन लव विद दैट गेम, विद द रेड बॉल फॉर्मेट। बट या ऑब्वियसली गिवन एन अपॉर्चुनिटी, who wouldn't want to play Test? Who wouldn't want to play? Even that I would. format? 100% yes. So I personally love Test cricket and T20. ODI bores me to death. There are millions of people who think like me. What is the future of ODI? I feel, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने फील किया है ODI क्रिकेट को नजदीक से और मैंने देखा है, वो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको तीन डिफरेंट वे में बैटिंग करना होता है। समटाइम्स if you go in early, जल्दी विकेट्स गिरे हैं, तो you have to bat like test cricket. Then you have to bat with a good strike rate like a one day, and then बाद में at the end of
at the end of the innings you have to bat like a T20 format also. So वो एक फॉर्मेट है जो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया. मैं पूरी कोशिश की मैंने खेलने की, बट देन चैलेंजिंग फॉर्मेट है. यू हैव टू प्ले इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. ऑल मतलब टेस्ट क्रिकेट के जैसा भी खेलो, T20 जैसा भी खेलो, और वनडे तो है ही. तो वो आई थिंक इट्स अ टफ फॉर्मेट टू प्ले. But from a fan's point of view, do you think ODI has a future? Because, you know, it is neither here nor there. There is neither the fast 3-hour match that T20, the excitement that T20 provides, nor does it have the satisfying feeling of a, you know, full buffet meal. कि आपको सब कुछ मिल गया, 5 दिन तक बैठ के आराम से खेलो. नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ओडीआई फॉर्मेट है वो अब जैसे 350, 400, 450 रन उसमें भी बन रहे हैं, तो वो भी एक्साइटिंग फॉर्मेट है. क्योंकि मैं जब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था टीम के साथ और खेला मैं, तब वो जो वाइब थी, वो फॉर्मेट का जो पूरा माहौल था, बिल्टअप था गोइंग इनटू द फाइनल, that was completely different than what we played in 2026 and 2024 T20 World Cup. तो उसका चार्म अलग है. ओडीआई क्रिकेट का भी चार्म अलग है, T20 का अलग है. ये आंसर निकलेगा नहीं आपसे. नहीं, यही है आंसर. मैं तो दोनों फील करके बता दिया मैंने आपको. 23 में उसमें भी था, 24 में इसमें भी था, बट बोथ हैज इट्स इक्वल चार्म. Yeah, true. When you walk into bat, what is the first invisible energy that you sense in the field? Is it the opposite captain's anxiety, or the energy of the bowler, or the crowd sensation? I think the crowd, as soon as I walk into bat, before even I've played one ball, एक बॉल खेलने से पहले ही they are so loud and they are so cheerful, वो देख के मजा आ जाता है. फिर मैं पूरा ट्राई करता हूँ और भगवान से यही मनाता हूँ कि इतने लोग आए हैं देखने के लिए, इनके लिए एंटरटेनमेंट तो बनता है, तो आज ट्राई करवा देना कि मैं 15 से 20 बॉल तो खेल जाऊं कैसे तो कैसे करके T20 फॉर्मेट में. तो वही चलता है. एंड देन ऑब्वियसली यू कांट शो द ऑपोजिशन दैट यू आर अंडर प्रेशर. दो यू आर अंडर प्रेशर, आप अंडर प्रेशर हमेशा रहते हो जब आप खेलते हो, बैटिंग को जाते हो इन एनी सिचुएशन, बट देन आप दिखा नहीं सकते अपने फेस पे, इसीलिए मैं वो च्युइंगम चबाता हूँ. और आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ऑफ योर इंटरनेशनल डेब्यू. जी. जोफ्रा आर्चर फर्स्ट बॉल बायलैटरल सीरीज था इंग्लैंड के अगेंस्ट, आपने छक्का मारा उस पे. व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट द टाइम? नहीं, मुझे सिर्फ यही था मेरे दिमाग में कि बस जाके कुछ तो करना है. 145 किलोमीटर पर आवर पे वो बॉलिंग कर रहा है और कुछ करना है. खेला हूँ ना उनको, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम खेल रहा था. दो इट वाज माय इंडिया डेब्यू, यस आई वाज नर्वस, बट एट द सेम टाइम आई प्लेड विद हिम. फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला उनके अगेंस्ट में, सो आई न्यू व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. तो मेरे दिमाग में यही था कि बस जाके खेलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जैसे लोग सूर्य कुमार यादव को जानते हैं वही करना है जाके, और कुछ नहीं करना है. इसीलिए आप देखोगे तो मैं और तेज भाग के गया था अंदर बैटिंग करने के लिए. स्टांस लेके मैं रेडी था. बस ये नहीं सोचा, क्योंकि मैं तब 25 साल का था नहीं, मैं 30 का था जब मैंने इंडिया डेब्यू किया. तो आप तब भी सोचो कि अगर आप अब फेल हो जाओगे तो क्या होगा. 25 में तो आप फिर भी सोचते हो अरे यार मैं आज फेल हो गया तो मुझे 2 साल बाद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. बट 30 में जाके आप इतना नहीं सोच सकते हो. 30 में जाके आपके हाथ में कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज है. आप 10 साल 11 साल क्रिकेट खेले हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट आप खेलते हुए आ रहे हो, सब कुछ आपने देख लिया है. वहां जाके सिर्फ जर्सी चेंज होती है, इमोशन चेंज होता है, बट रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. देयर इज आल्सो मैच्योरिटी एट 30 एंड यू आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड सेंसेस, आई गेस. बिल्कुल. By the way, the opposite end, Virat Kohli was there when you hit the 6. Did he come and say anything to you कि भाई जरा थोड़ा शांत हो जा भाई? नहीं, वो एक्चुअली गेम का ना एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मैंने बहुत बार शेयर भी किया लोगों से. वो जब मैं गेम खेला था, टिल देन ही वाज बैटिंग एट नंबर 3. जो जब गेम में मेरी बैटिंग आने वाली थी, तब उन्होंने आके मुझे बोला कि आज तू खेलेगा 3 नंबर. अच्छा. हाँ, तब जब मैं बैटिंग को गया और तब वो उनका रिएक्शंस देख के ड्रेसिंग रूम में नीचे डगआउट में जब वो बैठे थे, वो टाइम पे उन्होंने मुझे 3 नंबर खिलाया था. तब मैं वो नंबर जाके खेला था. तो ये एक इंसिडेंट है, मुझे याद है. तो मुझे और भी कुछ करना था टीम के लिए. He didn't. I don't remember if he came to you and said anything. No, he said everything in the post match. In the post match. Yeah, कि I've never seen someone walk like this and bat the way he did. I think वो सुन के भी और बहुत अच्छा लगा था. But it's very funny, the camaraderie between, among the teammates, and then you play IPL and there is like rivalry between Virat Kohli and you, Mumbai Indians and RCB. Correct. Previous year, there was a big staring match between you and Virat Kohli. 2020 में हुआ था वो. अब तो दोस्ती भी हो गई. हाँ, वो 2020 में हुआ था एक्चुअली, अबू धाबी में. अबू धाबी में था. जी. And Virat
that time, of course, by then he was a big name. Correct. आपने you Still is. stared back at him? नो 2020 में कैसा था कि उस टाइम पे ना ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए टीम अनाउंस हुआ था. हाँ. इंडियन टीम, ऑल 3 फॉर्मेट्स, T20, वनडे एंड टेस्ट सबकी. एंड लास्ट 2 years 2019 एंड 2020, एक्चुअली 2018 ही पकड़ लो आप, 18, 19, 20 मेरा बहुत ही अच्छा गया था इन टर्म्स ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट. एंड हर फॉर्मेट में रन हो रहे थे उसमें, एंड 2020 भी बहुत ही अच्छा जा रहा था. तो आई एक्सपेक्टेड कि नाम आ सकता है वो टीम में गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टूर, क्योंकि बहुत ऑस्ट्रेलियंस जो हमारे टीम में थे तो उन्होंने बोला कि व्हेन आर यू फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर द टीम वाज अनाउंस्ड ऑलरेडी. तो मैंने बोला व्हाई विल आई गो टू ऑस्ट्रेलिया. तो बोला नो, द टीम इज गेटिंग पिक्ड इन अ फ्यू डेज टाइम, आई थिंक यू विल बी देयर. मैं भी एक्साइट हो गया क्योंकि हाँ हो सकता हो, मैं भी बात करने लगा इधर उधर से. बट देन जब नहीं आया नाम, उसके बाद आई वॉज ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड कि अरे कैसे नहीं आया. आई हैड डन एवरीथिंग व्हाट आई कुड इन माय हैंड, जो भी मेरे कंट्रोल में था सब किया. फिर उसके बाद आता है वो MI RCB का गेम. तो अच्छा हुआ उसमें पहले फील्डिंग आ गई, क्योंकि मैं तो पूरा स्विच ऑफ था उसमें. वार्म अप के टाइम पे आ गया मैच, उसके टाइम मैच के बीच में वो चेस करने आ गया. मैं भी वो सिचुएशन में बैटिंग को चला गया जहां पे मैच जिताना है. तो आई थिंक एवरीथिंग वाज डेस्टिन्ड और प्लान्ड बाय गॉड कि भाई आज तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू डू समथिंग स्पेशल इन फ्रंट ऑफ द इंडियन स्किपर. तो मैं एकदम चुप था, कुछ बोलना नहीं था. च्युइंगम के पीछे सारा अग्रेशन, दुख दर्द सब दबा दिया मैंने. और वो सिचुएशन में आया, मैंने एक शॉट खेला, बॉल कवर में गया, उन्होंने बॉल फेंकने का एक्शन किया और कुछ नहीं बोला. वो सामने से चल के आ रहे हैं, मैं भी सामने से उधर ही खड़ा था. मैं बस अंदर इतना ही बोल रहा था कि भाई कुछ बोलना नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैटिंग अच्छी चल रही है, मैच जिताना है. और अग्रेशन था ही दोनों साइड से, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम की जो जीतता वो टॉप 2 में चले जाता. वो सिचुएशन वैसे आ गई थी, तो उस हिसाब से अग्रेशन था उनका. और बट वो वैसे भी ग्राउंड पे व्हेनेवर ही प्लेज अगेंस्ट एवरीवन और एनी टीम, ही इज ऑलवेज अग्रेसिव लाइक दैट. हिज नेचर इज लाइक दैट. उनका एग्रेशन आ ही जाता है, बिकॉज अग्रेशन अगर नहीं आएगा उनका, तो उनसे कितने बार मैंने बात किया तो बोलते आप इतने एग्रेसिव कैसे रहते हो. वो बोलते अगर एग्रेशन नहीं आएगा तो मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पाऊंगा. सो दैट इज व्हाट ही इज all about. I saw him the first time under 19 captain against Pakistan in Kuala Lumpur. The same aggression was there even at that time. Correct. He must have been 18 or 100%, 18 या 17 तब थे वो. तो वो सेम एग्रेशन आज तक स्टिल जब वो खेलते हैं, अभी आप देख रहे हो उनको ODI क्रिकेट खेलते हुए, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, इट इज द सेम. वो 1 इंच भी उनका कम नहीं हुआ है. अग्रेशन पे याद आया अर्शदीप ने जो बॉल फेंका. Was it a good thing to do? See, हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कभी हो जाता है. वो टाइम पे आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, आपको क्या करना है. बट देन पाजी को समझाया मैंने बाद में कि पाजी ऐसा नहीं होता है. फिर पाजी ने जाके डैरल मिचेल से बात भी किया है. इट वाज अ लाइट मोमेंट. वो उसने भी अच्छे स्ट्राइड में लिया. बट मेरा खुद का भी जाके डैरल मिचेल को बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि एज अ लीडर आप एक क्या एग्जांपल सेट करते हो ग्राउंड पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने उसको जाके वही बोला, अगर अर्शदीप ने डिलिबरेटली किया है तो भी सॉरी, और अगर डिलिबरेट नहीं भी किया है तो भी आई अपोलोजाइज. Right. You know, KKR made your name, but when you switched to Mumbai Indians, that is when I think there was a radical change in how you approached your own fitness, your game, and I believe your wife was very instrumental in helping you with that. करेक्ट. Just tell us a bit about that. देखिए, हमारी शादी हुई 2016 में, when I was still in KKR, and everything was going very smooth. खेल रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था. बट देन 2 साल she looked at my journey. उसने देखा अच्छे से कि क्या कर रहा है ये 2 साल. When we came in 2018, हम MI में आ गए, मुंबई इंडियंस में. तो उन्होंने बोला कि आई थिंक इट्स टाइम यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली. सब लोग तुम्हारे साथ जो खेलते थे एज ग्रुप में, सब लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे, कुछ लोग इंडिया भी खेल चुके हैं. व्हाट डू यू हैव इन माइंड? तुम्हारे प्लान क्या है? तो मैंने बोला कि मुझे भी इंडिया खेलना है. कैसे खेलोगे? ये उसका सवाल था. तो एक अच्छा कॉन्वर्सेशन था, आर्ग्यूमेंट नहीं थी, डिस्कशन था हमारी. बट ये था कि एक स्टेप आगे कैसे जाए. और भी अचीव करना है. अगर तुमको इंडिया खेलना है, इंडिया को मैचेस जिताना है, तो कैसे करोगे? देन वी हैड टू कट डाउन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, डाइट, फ्रेंड सर्कल, वीकेंड्स, सैटरडे संडे रेस्ट करना, मंडे टू फ्राइडे वर्क, काम करना. तो ये सब हमने चालू किया. And then 2018 was a very good year again in terms of franchise cricket and also domestic cricket. उस साल MI में ओपन करने का अपॉर्चुनिटी मिला.
I had got runs also. Then 2019 I had 20. So we kept doing the same thing. And I was in a different mood. She saw कि ये तो enjoy और करने लगा है. And then when 2020 came, उसमें और अच्छा हुआ. And then 2021 I got picked. Right. So she has been a big influence behind the scenes in telling me honest things. अब आप अगर पार्टनर के साथ शेयर करते हो तो वो तो ऑनेस्टी बताएगा आपको. वो क्योंकि आपका ग्रोथ चाहता है, अगर क्योंकि हम साथ में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इट हैज टू बी अ वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन. समटाइम्स इट हैज बीन ब्रूटल ऑल्सो, बट देन इट हैज बीन गुड. वेयर आई एम टुडे, आई थिंक दोज कॉन्वर्सेशंस विल गो डाउन अ लॉन्ग वे. You give her a lot of credit for what you have 100% achieved. डेफिनेटली यस, बिकॉज कितने टाइम में उसने मुझे हालांकि क्रिकेट से रिलेटेड कुछ नहीं बताया, बट लाइफ से रिलेटेड व्हाट डू आई नीड टू डू, कैसे इस चीज को अप्रोच करना है, हाउ डू आई कैरी माई सेल्फ, क्रिकेट को कैसे घर के बाहर छोड़ के आना है, घर के अंदर क्रिकेट कभी लेके नहीं आना है. तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी लाइफ में जो मैंने सीखी. और हम्बल रहना है, इररिस्पेक्टिव कुछ भी करो तुम ग्राउंड पे, ग्राउंड से बाहर आने के बाद तुम एक नॉर्मल सूर्य कुमार यादव हो जो हम घर में जानते हैं. खाने की प्लेट उठा के घर पे से खुद रख के आओ. ये सब छोटी छोटी चीजें एक्चुअली जो एड अप करती है लाइफ में. Nice. Surya, this has been a lot of fun, but I'll wrap this up with rapid fire questions. Oh, lovely. Just 4 or 5. Yeah, or maybe 10. A field setting that annoys you the most. फील्ड सेटिंग, एवरीवन ऑन द लेग साइड. जब मैं देखता हूँ ना कि सारे लेग साइड में पीछे है, हाँ. तब मुझे ऐसा लगता है अरे यार क्या हो क्या गया. हो गया? बट ठीक है, इट हैज बीन देयर प्रिपरेशन, आई हैव बीन ट्राइंग टू डू वेल ऑल्सो विद दैट. बट देन जब सारे पीछे रहते हैं तब मुझे ऐसा लगता है अरे यार क्या कर दिया इन्होंने. One shot you wish you had never invented. नेवर इन्वेंटेड. हाँ. अरे बाप रे, ऐसा तो कोई शॉट नहीं है मुझे ऐसा लगता है नेवर इन्वेंटेड. ऐसा तो कोई नहीं है. हाँ, आई लव ऑल माई शॉट्स. Okay. One cricket cliche that you wish commentators would never use. बाप रे, Tough questions पूछ रहा हूँ. वेरी टफ क्वेश्चन. आई लव ऑल द कमेंटेटर्स, इट्स ओके. ऐसा कुछ नहीं है सर, आई गिव देम ऑल द क्रेडिट. One rival team member who Okay. celebrates your wicket too dramatically. टू ड्रामेटिकली, राशिद भाई को तो अभी तक मौका मिला नहीं है. बट टू ड्रामेटिकली हु हैव आई गॉट आउट टू सो मेनी टाइम्स. कोई इतना एक्चुअली ड्रामेटिकली Franchise में भी कोई बहुत ज्यादा ड्रामा करता है जो. फ्रेंचाइज में भी मैंने एक्चुअली देखा नहीं ऑपोजिट में. हाँ. किसी को ज्यादा ओवर अग्रेसिव या कुछ ड्रामेटिक वे में ऐसे सेलिब्रेट Okay. करते हैं. या इट्स ऑल नॉर्मल. One rule in T20 cricket that you would happily delete tomorrow. ऐसा कोई रूल है जो आपको पसंद नहीं है? आई थिंक बॉलर्स के लिए थोड़ा हार्श है हाँ. फॉर्मेट. Yeah. तो मे बी अगर एक और बाउंसर डाल सकते हैं बॉलर्स के लिए, सो इट विल बी अ गुड थिंग. Absolutely. 100%. So you can give them a little bit of edge. I agree with you. नहीं तो सब बोलते हैं इट्स अ बैटर्स फॉर्मेट. Yeah. बट लेकिन बैटर्स फॉर्मेट तो है, बैटर्स तो जिताते ही है मैचेस, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं. तो वो एक बाउंसर का अगर रूल आ गया तो मजा ही आ जाए. One question by journalists that you wish they would never ask you. Which really irritates you. Questions by journalists. कि कल की प्लेइंग 11 क्या है. One cricket superstition that you find ridiculous. For example, मोटेरा का एक सुपरस्टिशन था कि ये तो पनौती है, जीतेंगे नहीं यहाँ पर. अब तो क्लियर हो गया सर एकदम कि स्टेडियम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. हाँ. बिल्कुल भी क्लियर हो गया अभी तो, क्योंकि देखो हम वहां पे कितने सारे गेम्स खेल चुके हैं पहले भी. और अब 2023 के बाद में इतनी बातें हुई स्टेडियम के बारे में, तो वी वांटेड टू चेंज दैट टाइड इन 2026 एंड आई थिंक वी हैव चेंज्ड इट. और अब उस पे स्टैंप लग गया है पूरा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम एंड वन ऑफ द लकीस्ट स्टेडियम्स. Is there any shot that you love but still hesitate to play? I love playing reverse sweeps. Yeah. बट देन वो मेरा लास्ट ऑप्शन है एकदम. मतलब जब सब बंदूक में गोली खत्म हो जाएगी तब मैं यूज करूंगा वो वाला शॉट. बट रिवर्स स्वीप डेफिनेटली है लास्ट. Okay. Final question. 10 years from now, what do you hope young cricketers copy from your game, and what do you hope they don't copy from you? Oh my God, what they copy from me? 10 years from now. I think every player has a different identity. They'll definitely have their own strong points, strengths, and weaknesses. So they should definitely look to be the best version of themselves. Yeah.
first yes, and if they want to copy something, then definitely ye dekho ki how to try and make a team win, how to make those small contributions on a given day, how to try and win big tournaments if you're playing for India, for your any team, respective teams. I think this is one thing which I would definitely like, and not copy is गिर के पड़ के मार के इंजर्ड मत हो जाओ. Surya Kumar Yadav, this has been such a wonderful conversation. I Thank have you, sir. 100 more questions, but we'll reserve them for some other time. Definitely. Thank you very much once Thank again. you, sir. Thank you.